Hello everyone, welcome back to your channel, and in this video we are going to discuss the most important question from human physiology. And what you have to do is you have to attempt the question and आपको comment करना है comment section में अपने marks, ठीक है? So without wasting your time, let's start our today's video. Our first question is, which function is lost due to damage of occipital lobe? Options are as follow. The correct answer is option A, vision. Our next question is, rods are sensitive to options are A, dim light, B, high intensity light, C, color perception, or D, all of the above. The correct answer is ऑप्शन ए, डिम लाइट. सो हमारे जो आईज होते हैं उस पर दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है. टू टाइप्स के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं. ये जो रॉड्स होते हैं ना, रॉड्स, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं दैट कंटेन रोडोप्सिन, पिगमेंट, which is associated with scopic vision of eye, that is vision under low light or dim light. देन हमारे पास एक और फोटो रिसेप्टर सेल होता है जिसका नाम होता है कोन. These cells are associated with the daylight vision and color vision of eyes. Our next question is, which part of brain is responsible for thermoregulation? Options are as follow. The correct answer is option A, hypothalamus. Hypothalamus is also known as thermoregulatory center of our brain. Thermoregulatory center of our brain, and it is responsible for maintaining constant body temperature. Our next question is, the protoplasmic segment of striated muscle fiber is termed as, options are as follow. A, sarcoplasm, B, sarcomere, C, neuromere, or D, metamere. The correct answer is ऑप्शन ए, सार्कोप्लाज्म. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्राइटेड मसल क्या होते हैं. स्ट्राइटेड मसल आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, ठीक है. They have striped appearance. And they are under the voluntary control. इसका मतलब ये वॉलंटरी होते नेचर में. These are primarily involved in locomotory actions and change of body posture, ठीक है. Our next question is, wall of internal organs, stomach, intestine, blood vessels contain muscles. Options are A, stripped, B, cardiac, C, smooth, or D, none of the above. The correct answer is
Option C, smooth muscles. Smooth muscles is also known as visceral muscles. तो ये स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनका अपीयरेंस होता है स्मूथ, इसमें किसी भी प्रकार की आपको स्ट्राइटेशन देखने को नहीं मिलती है, एंड ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं इन्हें, बिकॉज दीज आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, इनर वॉल ऑफ हॉलो विजरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक एलिमेंट्री कैनल एंड इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और ये हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती है, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये हमें हेल्प करती है उसमें, एंड गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट में भी जेनिटल ट्रैक्ट से हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. Options are A, sodium, B, potassium, C, calcium, or D, magnesium. The correct answer is option C, calcium. Our next question is, sesamoid bone ossified tendon is, options are as follow: A, patella, B, femur, C, tarsal, or D, tibia. The correct answer is ऑप्शन ए, पैटेला। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेस्मॉइड बोन क्या होते हैं। सेस्मॉइड बोन ऐसे बोन होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, ठीक है, बोन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कैल्शिफाइड होते हैं एंड ये हार्ड होने लगते हैं, ठीक है। सो बोन फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडेंस आर नोन एज सेस्मॉइड बोन। और ये पेटेला क्या होता है आपका, नी कैप, नी कैप, नी कैप। और इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ नी जॉइंट। तो ये पटेला हमें क्या प्रोटेक्शन देता है, हमारी नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। Our next question is, in human beings cranium is formed by, options are as follow: A, 8 bones of which 2 are paired, B, 10 bones in which 2 are paired, C, 12 bones of which 4 are paired, or D, 14 bones of which 6 are paired. The correct answer is A, 8 bones of which 2 are paired. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा स्कल है, स्कल, इसमें कितनी बोन्स होती है, इसमें 22 बोन्स होती है, ठीक है, 22 बोन्स होते हैं। एंड इसके भी 2 सेट्स ऑफ बोन से ये बना होता है, क्रेनियल, क्रेनियल जिसका काम क्या होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना, ब्रेन को, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा फेशियल, जिसमें कितने बोन्स होते हैं, हमारे 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। एंड क्रेनियल में कितने बोन्स होते हैं, हमारे 8 बोन्स होते हैं, 8 बोन्स, और फेशियल में 14। सो 14 प्लस 8 होता है 22, जो कि हमारे स्कल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्रेनियल बोन में हमारे पास एक होता है इथिमॉइड बोन्स, ठीक है। हमारे पास फिर होता है एक फ्रंटल बोन, फ्रंटल, एक ऑसिपिटल बोन, टू पेरिएटल बोन, एक स्फेनॉइड बोन,
and 2 temporal bones. तो आप देख सकते हैं टोटल हो गए 8 बोन्स। इसमें से 2 हमारे पास ऐसे बोन्स हैं जो कि पेयर्ड है, एक है पेरेटल एंड दूसरा है टेम्पोरल। ठीक है, ये पेयर्ड है, ये 2 है नंबर में, और सारी बोन्स आप देख सकते हैं सब एक एक है नंबर में, बट इकलौते ये सिर्फ 2 ये बोन्स है जो कि क्या है, पेयर्ड है। Our next question is, presence of which of the following conditions in urine are indicative of diabetes mellitus? The correct answer is option C, ketonuria and glycosuria. So ketonuria का मतलब होता है presence of ketone bodies in urine, and glycosuria का मतलब होता है presence of glucose in urine. ठीक है। Our next question is, glucose and amino acids are reabsorbed in, options are as follow. The correct answer is option A, proximal tubule. Proximal tubule is highly coiled region of nephron. ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड रीजन होता है। इसमें क्या होता है, इट रीअब्जॉर्ब मोस्ट वाटर। ये क्या क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन एंड वाटर ऑल्सो। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है, ये 70 to 80% ऑफ electrolytes so 70 to 80% electrolytes एंड वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में हो जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। Our next question is, a decrease in blood pressure or volume will not cause the release of, options are as follow. The correct answer is option A, ANF. सो आपको पता होगा जो हमारी हार्ट है उसमें एट्रियल वॉल्स होते हैं। तो एट्रियल वॉल क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं, एट्रियल वॉल्स सीक्रेट करते हैं एक पेप्टाइड हार्मोन नोन एज ANF। ठीक है, इट कॉजेस, इसका काम क्या होता है ANF का, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल्स है वो क्या रिलीज कर देंगे, ANF हार्मोन। ठीक है, जो क्या करता है ब्लड प्रेशर को, ANF का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करना। और अगर ब्लड प्रेशर लोअर होगा, डिक्रीज होगा, तो ANF रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि ANF तब कब रिलीज होती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। Our next question is, waves present between right auricle and right ventricle is, options are A, mitral wave, B, tricuspid wave, C, bicuspid wave, or D, semilunar wave. The correct answer is
ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड वेल. सो ट्राइकस्पिड वेल प्रेजेंट होती है हमारे राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में. तो ये वेल्व क्या होता है? वेल्व का फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को. इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड. And next question is, largest part of alimentary canal is, options are A. large intestine, B. small intestine, C. stomach, or D. esophagus. The correct answer is ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एलिमेंट्री कैनल का लार्जेस्ट पार्ट है. ठीक है. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारी मैक्सिमम डाइजेशन होता है. ठीक है. सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. Our next question is, maximum absorption takes place in, options are first duodenum, second jejunum, third ileum, or fourth ileum. The correct answer is ऑप्शन 2 जेजुनम. जेजुनम में क्या होता है? मैक्सिमम फूड एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 रीजन में डिवाइडेड होता है. ड्यूडेनम, जो कि क्या होता है? यू शेप्ड होता है. यू शेप. फिर अ लॉन्ग मिडल पोर्शन को जेजुनम बोलते हैं हम. ये मिडल पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन. एंड इलियम क्या होता है? ये हाईली कॉइल्ड होता है. हाईली कॉइल्ड रीजन होता है. ठीक है. Our next question is, crypts of Libercu is found in, options are as follow. First mucosa, second submucosa, third serosa, or fourth muscularis. The correct answer is option 1 mucosa. Our next question is, structural and functional unit of liver is, options are first hepatocyte, second hepatic lobules, third hepatic cell, or fourth gallbladder. The correct answer is ऑप्शन 2 हेपेटेटिक लॉब्यूल्स. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर क्या है. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड. इट वेज अराउंड 1.2 to 1.5 kg. एंड ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी में और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है. ठीक है. डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है और एब्डोमिनल कैविटी में होता है. और इसमें कितने लोब्स होते हैं हमारे लिवर के पास? 2 लोब्स होते हैं. 2 लोब्स. ओके. Our next question is, trypsinogen is converted into trypsin by, options are first pepsinogen, second carboxypeptidase, third chymotrypsinogen, or fourth enterokinase. The correct answer is option 4 enterokinase. Our next question is,
Renin is options are enzyme, second hormone, third amino acid, or fourth carbohydrate. The correct answer is ऑप्शन 1 एंजाइम। रेनिन क्या है? एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है, ये इट्स रोल इज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड। ये सिंपलर यूनिट होती है ना, तो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड में, ठीक है। एंड ये रेनिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? रेनिन एक प्रोटोलिटिक एंजाइम है जो कहाँ पे देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। तो ये गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट में देखने को मिलता है। इन्फेंट, और ये क्या करता है? ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन। ओके, our next question is maximum transportation of carbon dioxide is by, options are first bicarbonate, second plasma, and third blood. The correct answer is option 1 bicarbonate। अराउंड 70% के आसपास जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अराउंड 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, एंड अराउंड 7% of carbon dioxide is carried in dissolved state through plasma। तो 7% हमारा प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, 70% हमारा बाइकार्बोनेट्स के थ्रू, एंड 20 से 25% हमारा RBCs के थ्रू हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ ए granulocyte is, options are first neutrophils, second monocyte, third both 1 and 2, and fourth none of the above. The correct answer is option 2 monocyte। Monocyte and लिम्फोसाइट क्या होते हैं? हमारे ए ग्रेनुलोसाइट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच WBC is involved in allergy? Options are as follow. The correct answer is option 1. Next question is venous heart is present in, options are first fish, second amphibian, third mammals, or fourth reptiles. The correct answer is ऑप्शन 1 फिश। तो फिश में कैसा हार्ट प्रेजेंट होता है? हमारा वेनस हार्ट विथ 2 चैम्बर्ड, इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, विथ 1
ventricle, one atrium, and one ventricle. Our next question is, what is responsible for initiating rhythmic contractile activity of heart? Options are as follow. The correct answer is option 1, SA node. SA node is also known as pacemaker. पेसमेकर ऑफ हार्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में ये प्रेजेंट होता है। Next question is, name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. Options are as follow. The correct answer is option D, thrombocytes. Thrombocytes का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। और आपको पता होगा प्लेटलेट्स आर सेल फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये रिलीज करती है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स का काम होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इनका काम होता है ना। तो अगर ये नहीं होंगी तो इससे क्या होगा? जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है वो देखने को हमें मिलेगा, और उससे क्या होगा? जो हमारी बॉडी है उससे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर filtrate is reabsorbed in which part of the nephron? Options are as follow. A. Ascending limb of loop of Henle. B. Distal convoluted tubule. C. Proximal convoluted tubule. Or D. Descending limb of loop of Henle. The correct answer is option C. Proximal convoluted tubule. ये PCT सिंपल मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म PCT किससे बने होते हैं? हमारे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जिससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और अराउंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड इन दिस सेगमेंट। तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? PCT में। ठीक है, और PCT का एक और फंक्शन है, ये क्या करता है? pH एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Options are, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water. B. Ascending limb of loop of Henle is permeable to water. C. The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes. Or D. The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. The correct answer is option D. The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water.
तो आपको पता होगा कि रीएब्जॉर्प्शन हमारा मिनिमम कहाँ पे होता है, असेंडिंग लिम्ब में। तो असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है हमारा। ऑल्सो जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होता है, मैं यहाँ पे इसकी ड्राइंग बना देती हूँ, फिगर डायग्राम कुछ ऐसे, ये हमारा डिसेंडिंग है लिम्ब है और ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, ये क्या होता है, ये परमिएबल टू वाटर होता है, परमिएबल टू वाटर। इसका मतलब क्या करेगा, ये पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसका मतलब जब हम डिसेंडिंग लिम्ब से हमारा जो एक्सक्रीट है ये पास ऑन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन देखने को मिलता है यूरिन का, यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है क्योंकि वाटर को सब एब्जॉर्ब कर लेता है। देन ये हमारा असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब क्या है, ये है इम्परमिएबल टू वाटर, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब क्या है हमारा, इम्परमिएबल है वाटर के लिए, बट इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली एंड और पैसिवली। तो इसका मतलब क्या है, हमारा असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, ये वाटर को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये क्या करता है, एक तरह से हमारा डाइल्यूट कर देता है, जो हमारी यूरिन है उसको डाइल्यूट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। Thank you so much guys for watching this video, and if you like the video then do share and subscribe to our channel, and also don't forget to comment your marks in the comment section below.